How are you all? Good, that's good. So I am Ruksa ma'am and today I am here with the rest of the chapter of standard 3, that is unit number 3, our solar system. Previously in part 1 video we have seen activity 1, 2, 3 and 4. In that I'll make introduce to you the family member of sun, different 8 planets to you. Now in this part 2 video we are going to study the rest of the chapter and rest of the activity, that is activity 5, activity 6 and activity 7. Okay dear student. So let's see the activity 5, what will be given to you. Now let's read another poem on the planets of the solar system. Okay, let's read the another poem. We are going to read the another poem. First of all, we will sing the poem, then after we will go through the explanation. Okay, dear students? Let's sing the poem, Planets. I know the planets one by one. I know the planets one by one. Starting with the one that's closest to the sun. Starting with the one that closest to the sun. Mercury, Venus, Earth and Mars. Mercury, Venus, Earth and Mars are the first four among the stars. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are the next planets in the tune. Neptune is the farthest one from the sun. I know the planets one by one. I know the planets one by one. Very good. You sing very well, dear student. Let's go through the explanation of this poem. In this poem is about planets. Planets के बारे में ये poem है. देखो क्या कह रहा है. I know the planets one by one. मैं planets को one by one जानता हूँ. Starting with the one that's closest to the sun. Planet कहाँ से start होते हैं? ऐसे planet से जो सबसे closest है sun के, Mercury से. So first 4 planets के नाम आपको दिए गए. Mercury, Venus, Earth and Mars. That are first 4 planets. Are the first 4 among the stars. जो stars है उनमें से फर्स्ट 4 है. ठीक है. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर द रेस्ट ऑफ द 4 प्लैनेट आर द नेक्स्ट प्लैनेट इन द ट्यून. आर द नेक्स्ट प्लैनेट इन द ट्यून. लाइन में दूसरे प्लैनेट से. ओके. नेपच्यून इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन. और नेपच्यून ऐसा प्लैनेट है जो सन से बहुत दूर है. ठीक है. आई नो द प्लैनेट्स वन बाय वन. ओके. मैं प्लैनेट्स को वन बाय वन जानता हूँ. ओके डियर स्टूडेंट. नाउ हियर next facts about the earth. Facts about the earth is given to you. Earth is the planet where you and I live. जहाँ पर हमारा home है. ठीक है. Earth is a small rocky planet which supports a variety of life. Earth क्या है? एक छोटा rocky यानी पथरीला planet है जिस पे क्या है? Variety of lives है. यानी insect हो, birds हो, butterflies या फिर human beings. Okay. Earth is the third planet from the sun. Earth कौन से नंबर का planet है? That is third numbers planet. Okay. It is the 5th largest of the 8 planet. और जो 5th largest planet है किसमें से? जो 8 planet है उसमें से 5th नंबर पे largest planet कौन सा है? Our Earth. Now let's see the activity 6. In activity 6 one story is given to you, that is the ant and the dove. Okay. ant और dove के बारे में story. ant means जो चींटी होती है वो, and dove pigeon आता है ना, कबूतर. that is उन दोनों के बीच की story है. Okay. on his way home an ant saw a sparkling fountain. now on his way home, जब ant अपने घर जा रही थी रास्ते में उसे एक sparkling fountain दिखा. बुलबुलों से भरा हुआ fountain. He crawled on to its wall to take a closer look. वो फाउंटेन की वॉल पर गई उसको पास से देखने के लिए. ठीक है. Suddenly he slipped and fell into the water. अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो कहाँ गिर जाती है? पानी के अंदर. He gargled and panicked and waved his legs in air. Okay. वो क्या हो जाती है? गार्गल्ड यानी मतलब गले से आवाज़ निकलने लगती है ना जब पानी हमारे मुंह में जाता है, तो इस तरह की आवाज़ निकलने लगी. और पैनिक यानी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी. ठीक है. फीलिंग ऑफ वरी, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी. और वेव्ड हिज लेग्स, अपने पैरों को हवा में हिलाने लगी. ठीक है. वो छटपटाने लगी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था. ओके. नेक्स्ट, हेल्प आई कांट स्विम. टर्न द पेज डियर स्टूडेंट. ओके. टर्न द पेज on page number 20. Help, I can't swim, he cried. Luckily, just at a moment, friendly dove flew by. Now उसने चिल्लाया help, I can't swim, और वो रोने लगी.
और लकीली क्या हुआ, उसी टाइम पर एक फ्रेंडली, एक डव जो बहुत अच्छा फ्रेंडली था, वो वहाँ से फ्लू यानी उड़कर जा रहा था। शी सॉ द टाइनी आंट, उसने छोटी सी चींटी को देख लिया। वॉज ड्रॉइंग एंड क्विकली फ्लू और टू द नियर बाई ट्री, और मतलब वो जल्दी से क्या गया, नियर बाई एक ट्री के पास गया और वहाँ जाकर एक क्या लेकर आया, लीफ लेकर आया। शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द आंट, उसने एक ट्री का लीफ लेकर आया और जहाँ आंट डूब रही थी वहाँ पर वो लीफ डाल दिया, ठीक है, ग्लाइड वहाँ पर डाल दिया। शी कूड एंड फ्लू अवे, और उसने क्या किया, शी कूड एंड फ्लूड अवे, वो फिर वापिस से उड़ गया, कूड यानी आवाज़ करता हुआ उड़ गया, ठीक है। मतलब द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट फ्रेंडली पिजियन ने क्या किया, हेल्प की, यानी वी शुड ऑलवेज हेल्प टू अदर्स, और हमारा नेचर हेल्पिंग होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी द एक्टिविटी 7 इन दैट read the following sentence carefully according to their size arrange the planets from the largest to the smallest। देखो यहाँ पर planets दिए गए, कुछ के names आपको mention किए गए और कुछ के नहीं दिए गए, जिनके missing है उनके name आपको लिखने हैं, ठीक है। ये sentence हमें पढ़ना है carefully और उसके according planets को largest to smallest arrange करना है। क्या करना है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ओके। then द मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 8 प्लानट, सबसे छोटा प्लानट कौन सा है, मर्क्यूरी, तो उसका नेम अवेलेबल है, दैट्स इट, दिया गया है, ठीक है। द जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर, तो फर्स्ट वन यहाँ दिया गया तो हम वहाँ जुपिटर लिख देंगे, ठीक है। देन आफ्टर व्हाट इज गिवन टू यू, द वीनस इज द 6 इन द साइज, 6 नंबर में वीनस है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पर हम वीनस लिख देंगे, ठीक है। वीनस इज द 6th इन साइज, ओके, साइज में जो 6 नंबर पर बड़ा है साइज में, उस पर हम वीनस लिख देंगे, ओके। द अर्थ इज द 5th, अर्थ कौन से नंबर का है, 5th नंबर का है, तो हम क्या करेंगे, जो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट दिख रहा है उस पर हम अर्थ लिख देंगे, ठीक है। द यूरेनस इज बिगर देन द नेपच्यून, ओके, जो यूरेनस है नेपच्यून से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो नेपच्यून लिखा है उससे जो बड़ा प्लैनेट दिख रहा है लार्जेस्ट, उस पर हम क्या लिख देंगे, यूरेनस, ओके। नाउ द मार्स इज द स्मॉलर देन वीनस, और मार्स कैसा है, वीनस से स्मॉलर, तो वीनस से जो स्मॉलर दिख रहा हो उस पर हमें मार्स लिख देना है, ओके डियर स्टूडेंट। हियर वी एंड द एक्टिविटी 7, ओके डियर स्टूडेंट। आई होप नाउ our chapter is completed. I hope dear student you will understand the activity 5, 6 and 7, okay dear student. Thank you, keep watching.